Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Nityay Gaurango, Nityay Gaurango, Nityay Gaurango, Gaur Hari, Nityay Gaurango, Nityay Gaurango, Nityay Gaurango, Gaur Hari, Gaura Gaura, Gaur Hari, Gaura Gaura, Gaura Gaura Hari, Gaura Gaura, Gaura Hari, Gaura Gaura, Gaura Hari, Gaura Gaura, Gaura Hari, Gaura Gaura, Gaura Hari,
गौरा गौरा गौर हरि नित्याय गौरांगो नित्याय गौरांगो नित्याय गौरांगो गौर हरि नित्याय गौरांगो नित्याय गौरांगो Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, जय श्री राधा माधव की, श्री रूपा की, श्री गुरुदेव की, जय गौर प्रेमानंद। Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. I'll request Jacket Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Yes, Prabhuji, your video is still not on. Yes, just yes. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. Thank you. Yeah. Hare Krishna to all the devotees in this forum. So thank you for joining, showing eagerness to hear the Harinam Kirtan at Krishna Katha. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Barodhari Jaya Giri Barodhari Jaya Jasodhanandana Brajadhana Ranjana Jasodhanandana Brajadhana Ranjana Yamuna Tira Hanachari Jaya Radha
माधव दया कुंज बिहारी जय राधा माधव दया कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ दया गिरिवर धरी जय गिरिवर धरी जय जशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय ब्रज जनरंजना जय जमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय जमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव श्री राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव राधा माधव सती जय गोपाल की जय गौ निताय भगवान की जय भगवद गुरु प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंद। Thank you all the devotees. Hare Krishna. So first of all, I'd like to thank this Guruvardhari Prabhu for engaging me in this service. तो ये बेसिकली आप लोगों से हम कृपा योजना करेंगे कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि हम आज जो सब्जेक्ट मैटर है इसको जथा समय जथा टाइम में हम मतलब सब आ जाएं और हम इसको व्याख्या करने के लिए कोशिश करें गुरु गौरांग की कृपा से। एंड जो भी प्रीवियस आचार्य एंड प्रीवियस जो डिवोटीज है सीनियर डिवोटीज से सुना है तो उनका लेके हम कोशिश करने के लिए प्रयास करेंगे। तो दिस इज फॉर माय ओन प्यूरिफिकेशन, ये हमारा सेवा है आप लोगों के लिए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमको
आपका सेवा में हम थोड़ा टाइम दे, मतलब हम अपना इंद्रियों को जो आपका सेवा आप लोगों का सेवा में लगा रहे हैं। तो हरे कृष्णा। तो आज जो है जो शीर्षणीय है जो हम आज कल से चूज कर रहा था, कि मैं कल तक सोचा था सुबह तक जो हमने आज कृष्णा किली मसुरा, तो उसमें हम सटकासुरा सटकासुरा का प्रसंग लेंगे। तो जाके हमको वहां से बहुत सारे तीनों पड़ता है, जाके बहुत सारी शिक्षाएं हैं एक्चुअली। जब भगवान असुर को किल करता है तो हमारे लिए बहुत सारे शिक्षाएं छोड़ के जाता है। तो वो हम सोचा था, लेकिन कल शाम को सोचा नहीं, उससे पहले हमको इंट्रोडक्शन लेना है। इंट्रोडक्शन में जो है आज जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन का, जो व्हाई कृष्णा किल्स द डेमन, तो भगवान कृष्ण का क्या जरूरी था ये सारे असुर लोगों को मारने का। तो वो हमारा आज प्रसंग है। तो उसमें कई सारे रीजन है, तो हमने उसमें से 8 रीजन हमने चूज किया है। तो हम टाइम का हिसाब से जितना पॉसिबल है कर पाएंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरांजस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। भक्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। Prabhuji, is sound is clear? Yes, Prabhu, very clear. ओके ओके। अदरवाइज मैं हेडफोन लगाने के लिए सोच रहा था। ओके। Very clear, very clear. तो भगवान का जो आज हम लोगों का सौभाग्य दिन है, जो हम भगवान का जो एवरी साल जो प्रकट दिवस मनाते हैं। तो अभी श्री कृष्ण भगवान का जो हमारा जन्माष्टमी है, जो भगवान का प्रकट है, वो है कमिंग 12 अगस्त को, जाके बुधवार को है। तो इस बार तो प्रभु जी गिरिवरधारी प्रभु साइंस प्रभु उन लोगों ने क्या एक प्रोग्राम रखा है ऑनलाइन में, जाके सुबह 10 बजे से लेके पूरा दिन लगभग कीर्तन भजन कीर्तन चलेगा, एंड बच्चे का डिफरेंट एक्टिविटीज, एंड शाम को जाके ऑनलाइन अभिषेकम एंड भजन कीर्तन चलता रहेगा एवं भगवान का दर्शन मिलेगा। इस प्रकार जो है, जो भक्त लोग जो है भगवान का जो प्रकट दिवस बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और वही हमारे लिए सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है थ्रू आउट द ईयर। तो और भगवान का जो प्रकट का जो कारण है, वो श्रीमद् भागवतम दशम स्कंदे आप लोग देखेंगे, आप लोगों को सबको मालूम है जो भगवान क्यों प्रकट होता है। फिर भी फॉर माय ओन प्यूरिफिकेशन थोड़ा 2-4 लाइन बता के फिर हम आज का टॉपिक में जाएंगे। तो
तो भगवान जो है, हम भगवत गीता में देखता है भगवान श्री कृष्ण बोलता है अर्जुन को क्या, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तद्वतः तदेहम पुनर्जन्म नयेति मामेति स अर्जुन। तो ये कृष्ण जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो जो व्यक्ति मेरा जो जन्म है, जो मेरा अपीयरेंस है और जो कर्म है, जो एक्टिविटी है, इसको जो व्यक्ति तद्वता, तद्वता मीन्स एज इट इज, हाँ, तो इसलिए भगवत गीता का नाम है एज इट इज भगवत गीता। तो एज इट इज जो जान लेता है जो व्यक्ति, उसका रिजल्ट क्या है, भगवान बोलता है देहम पुनर्जन्म, उनका हाँ शरीर छोड़ने के बाद इमीडिएटली पुनर्जन्म नयति मामेति स अर्जुन, हे अर्जुन, उसको दोबारा जन्म नहीं होता इस संसार में। हाँ, इस संसार में वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो चक्र है, इससे वो छुटकारा मिल जाता है, जन्म मृत्यु का बंधन से उसको छुटकारा मिल जाता है। लेकिन ये तत्व को अच्छा समझते, अच्छा तरह समझना चाहिए। कहाँ पे समझना चाहिए ना, गुरु का कृपा से एंड शिला प्रभुपाद का कृपा से एंड भक्त का मुक्ति। तो ये जन्म जन्म इस बहुत रहस्यजनक है भगवान का। तो जो साधारण व्यक्ति जो है, भगवान का जन्म एंड कर्म, जो दिव्य लीला और भगवान का जो जन्म, इनको ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो साधारण भौतिकवादी व्यक्ति है, उन लोग क्या क्या सोचता है, जो भगवान जब इस धरती में आया है, हाँ, जब दो हाथ लेके जो भगवान जो वसुदेव एंड देवकी माता का गर्भ से जब आए हैं, तो साधारण मनुष्य का रूप में आए हैं, तो लोग जो है, हाँ, साधारण लोग समझ में नहीं आते हैं। इसलिए भगवान ये भी भगवत गीता में बोला है, अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमुच्यता। तो जो मूढ़ा लोग, जो फूलिश लोग, हाँ, उन लोग क्या करते हैं, इसको वो मेरा तत्व को समझ में नहीं आता है, उन लोग क्या करते हैं, अवजानते, मेरे को डिसाइड करता है, मेरे को साधारण हाँ व्यक्ति समझते हैं। और परम भाव अवजानन्ति, मेरा जो परम जो भाव है, मेरा जो दिव्य भाव को उपलब्धि नहीं कर पाता है, नहीं समझता है। एंड क्या क्या, हाँ, तो इसलिए हमको एक साधारण मनुष्य जैसे समझ लेता है और भगवान को मानता नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता है। तो यही है भौतिकवादी के। और यही जो चीज जो है, कुंती महारानी उनका प्रेयर्स में क्या बोलता है, जे विडम्बरम, सब विचलित हो जाता है। जन्म कर्म च विश्वात्मन विसर्जा कर्तुरात्मनः अज अजस्स कर्तुरात्मनः तिर्जान्निर्शिशु जादस्सु तद अत्यंत विडम्बनम। तो भगवान जब इस धरती पे आता है, उसका जो जन्म है और उनका जो पास्ट टाइम्स है, लीला है, हाँ, ये सब जो है, ये असुर लोगों को समझ में नहीं आता है। भगवान किसी भी टाइम मनुष्य का हिसाब से आता है, किसी भी टाइम पशु का शरीर लेकर आता है, किसी टाइम शेष का शरीर लेकर आता है, मत्स्य कूर्म डिफरेंट अवतार आता है। लेकिन भगवान चाहे मत्स्य है और चाहे कूर्मा है, भगवान इज भगवान। भगवान चाहे 1 साल का शिशु है, 1 दिन का शिशु है, उनका उनमें से वो इतना ही शक्ति है जो श्याम सुंदर भगवान कृष्ण के पास है। क्योंकि भगवान इन ऑल कंडीशन ही इज ऑलवेज सुप्रीम लॉर्ड ओनली। लेकिन क्या भौतिक जगत में लोग भगवान बनना चाहता है, तो उनको भगवान बनने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, वो सोचता है कि हम भगवान बन जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं मान रहा है, और जो भगवान ऐसा बनता नहीं है, भगवान हमेशा के लिए दिव्य रहता है। और भगवान वो है, ओनली कृष्णा इज द सुप्रीम भगवान, यदि तमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान। इसलिए भगवान जब इस धरती पे आता है, श्याम सुंदर कृष्ण, उसके साथ सारे जो विष्णु का फॉर्म है, कसा विष्णु, गर्भदा कसा विष्णु, कारणदा कसा विष्णु, एवं जो हमारा वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न, महासंकर्षण, ये सारे जो है, और भगवान का बाकी सारे जितना सारे अवतार है, तो भगवान उसका स्रोत है, भगवान उसका उत्स है। इसलिए जब भगवान इस धरती पे स्वयं अवतारित होता है, स्वयं भगवान कृष्ण श्याम सुंदर रूप में आता है, सारे अवतार, विष्णु, सारे जो नारायण, ऑल जो है भगवान का शरीर में होता है, भगवान का शरीर में रहता है सब। इसलिए जब भगवान असुर को किल करता है, एक्चुअली भगवान कृष्ण नहीं करता है, कौन करता है, भगवान के अंदर जो विष्णु फॉर्म है, वही विष्णु फॉर्म भगवान को जो असुर को मारता है, उनको हत्या करता है। तो ये सब चीज जो है, ये सब विडम्बनम है। कुंती महारानी बोलता है कि भगवान का जो जन्म है, उनका जो लीला है, पास टाइम्स है, एक्टिविटीज है, और डिफरेंट जो
श्रेणी में उन्होंने जो जैसे जैसे अवतार लिया है, जैसे एनिमल, मेन, सेजेस, एक्वाटिक्स, ऐसा डिफरेंट जो है यूनि में जो उन्होंने आया है, अवतारित हुआ है, तो ये सब जो साधारण मनुष्य के लिए ये है बहुत बिवेलरिंग, मतलब विचलित है। तो ये समझ में नहीं आता है। लेकिन भगवान जब आता है क्या है, ऑल्दो इट इज सेड इन भगवत गीता जे भगवान जो अनबन है, अजो अपिसान अव्ययम, तो ऑल्दो ही इज अनबॉर्न, फिर भी क्या कर रहे हैं भगवान, तद्यपि क्या करता है ना, हर मिलेनियम में वो आता है। भगवान का जो आविर्भाव है तिरोभाव, इट इज जस्ट लाइक ए सन राइजिंग। सन जब उदित होता है एवं शाम के टाइम में सन चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि सन का जन्म होता है या सन का मरण होता है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार, क्योंकि हम हमारा दृष्टिकोण से सूरज जो है बाहर चला जाता है, वी कैन नॉट सी इन द नाइट, बट दैट डज नॉट मीन दैट सन इज नॉट देयर, हमेशा ही सूरज होता है। तो इस प्रकार भगवान हमेशा ही होता है कि हम कभी हमारा सामने वो आविर्भूत हो जाता है, कभी हमारा सामने से वो अप्रकट हो जाता है। अदरवाइज भगवान तो हमेशा गोलोक वृंदावन धाम में हमेशा नित्य विराज करता है, ठीक है ना। तो आगे जाकर हम देखेंगे जब भगवान जब आता है तो हमारे लिए क्या लाभ मिलता है। भगवान जब आता है वो क्या है, बेसिकली भक्तों को आनंद प्रदान देने के लिए, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों आता है ना, सबको दया दिखाने के लिए, इस प्रकार भगवान भी आता है। बट एनीवे, तो ये सब डिफरेंट रीजन है भगवान को आने का इस धरती पर। तो अभी हम जो है चर्चा करने जाएंगे जो भगवान का डिफरेंट जो फर्स्ट टाइम जब भगवान क्यों इस धरती पे ये सॉरी भगवान क्यों असुराज को मारता है, व्हाई कृष्णा किल्स द डेमॉन्स। तो आप लोगों को मालूम है जे भगवद गीता में क्या बोलता है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम सब लोग जानते हैं कि भगवान तीन चीज के लिए आता है, साधु लोगों को रक्षा करने के लिए, धर्मों का स्थापन करने के लिए और असुर का हत्या करने के लिए। लेकिन भगवान को असली उद्देश्य कुछ और है। तो हम भगवान वो उसका इस कथा कमापी हम जानेंगे उसके लिए। और नंबर वन, जो भगवान क्यों असुर को ठीक करता है, जो पृथ्वी माता है, ये पृथ्वी माता का जो बोझ जो है, पाप का जो बोझ है उसको कम करने के लिए। आपको दशम स्कंद में भागवतम का आपको मालूम है कि जब पृथ्वी माता जब पृथ्वी का जो पाप का जो बोझ है वो इतना बढ़ गया था, एक समय पृथ्वी माता गाय का रूप लेके किसके पास आया था, ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास रिक्वेस्ट किया है कि पाप का बोझ इतना बढ़ गया है पृथ्वी में, तो इसीलिए मैं इसका धारण नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को सहन नहीं हो रहा है। देखिए पृथ्वी माता हर चीज सहन कर लेता है, अगर जनसंख्या बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो वो सारे चीज हर बोझ का वो उठा लेता है, लेकिन जब पाप का बोझ है उसके लिए भारी पड़ता है। हम सोचता है जब बोझ मीन्स जो वेट है, लेकिन जो भी वेट वगैरह जो भी बाकी सारे बोझ सहन कर लेता है, लेकिन पाप का बोझ सहन नहीं कर पाता है। इसलिए तुरंत वो उसके पास गया, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सारे देवी देवता को लेके, पृथ्वी माता को लेके क्षीर समुद्र का तट पे गया है और वहां पे विष्णु को प्रार्थना कर रहे हैं। अब विष्णु जो है ब्रह्मा जी को हृदय तो हृदय में क्या किया, उन्होंने अपना जो बात जो है उन्होंने बताया है। तो तेने ब्रह्म हृदय, तो भगवान जो है ब्रह्मा का हृदय में ज्ञान दे देता है। तो ब्रह्मा जी को क्या बोला है, जे हम जल्दी जो है अवतारित हो जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी सारे देवी देवता को बोला है कि भगवान अवतारित होने वाला है। तो उस प्रकार वो आ गया है शांत होके। तो इस प्रकार जो है, जो भगवान जब आता है वो पृथ्वी माता का ऊपर जो पाप का बोझ जो है वो कम करने के लिए कैसे है ना, वो आके जो पृथ्वी में जो असुर है उन लोगों को यहाँ से मिटा देता है। तो इसलिए तो भगवान जब असुर को हत्या करता है तो हम ऐसा आपात दृष्टि में देखते हैं, एक साधारण क्यों भगवान ऐसा मारता है, भगवान क्यों लड़ाई करता है, आखिरी में क्या होता है, जो लड़ाई है, किसी को मारना है, किसी को झगड़ना, ये सब जो है मोड ऑफ इग्नोरेंस, तो थ्री मोड्स में। लेकिन क्या वास्तविक ये है कि भगवान
प्रकृति का 3 गुण के द्वारा आच्छादित है। भगवान 3 गुण के आधार पे है, ऐसा नहीं है। ऑल्दो यद्यपि भगवान असुर को मारता है, फिर भी भगवान जो है क्या है, ये 3 गुण से बाहर है। तो भगवद गीता क्या बोलता है, भगवान अर्जुन का क्या बोलता है, त्रिभिर्गुणमयैर्भावे देवी सर्वमिदं जगत् महितं नाभिजानाति मामेव परमव्ययम्। तो ये जो 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 भौतिकवादी जो लोग, जो पूरा जो दुनिया जो है वो मेरे ये नहीं जानता है, वो पूरा मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस, मतलब ऐसा माया में है। उनको ये नहीं मालूम है कि मैं जो भी इस धरती पर आने के बाद साधारण लोग जैसा कर्म करता हूँ, असुर को मारता है, लड़ाई करता है, लेकिन फिर भी मैं प्रकृति का 3 गुण से ऊपर हूँ, क्योंकि वो भगवान है। भगवान प्रकृति के मानानी मायाध्यक्षण प्रकृति सुजाते स चराचर। तो भगवान मायाध्यक्षण प्रकृति मीन्स प्रकृति जो है भगवान का अधीन में चलता है। तो प्रकृति जो है भगवान का इशारे में चलता है, तो भगवान प्रकृति का अधीन में कैसे हो जाएगा, नहीं होता है। तो ये भगवान आता है हमको कुछ शिक्षा देने के लिए और डिवोटी को आनंद प्रदान करने के लिए। तो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए जो भगवान जो है ये प्रकृति का गुणों से ऊपर है, यद्यपि वो आके असुर को मारते हैं। तो इसलिए भगवान ये सब हर चीज से ये बाहर है। और अब मैंने अभी जैसे बताया जो है, जो भगवान कृष्णा असुर को किल नहीं करता है। कौन किल करता है? उसके अंदर जो विष्णु है वो असुर को मारता है। तो क्योंकि भगवान कृष्ण का काम वो नहीं है, भगवान कृष्ण का काम बहुत कुछ है। उनका लीला करना है, गाय चराने का है, बछड़ा चराने का है, बाकी गोपी के साथ लीला करना है, तो वो सब बहुत एक्टिविटीज है। तो इसलिए जो विष्णु जो फॉर्म है वो है भगवान, ये असुर को मारते हैं। तो ये सब चीज जो है, और भगवान जैसे अभी चर्चा चल रहा है जो पृथ्वी का भार नाश करने के लिए, तो इसका बारे में वाला सत्र में बहुत एक नाइस वर्स दिया है। जयतु जयति देव देवकी नंदनयम, जयति जयति कृष्ण विष्णु वंश प्रदीप, जयतु जयतु मेघा श्यामल कमलंग, जयतु जयतु पृथ्वी भरसनास मुकुंद, जयति जयति देव देवकी नंदन। All glories to Supreme Personality of Godhead. All glories. Devaki Nandan, and Jashoda Nandan, Devaki Nandan. जयति जयति कृष्ण, भगवान कृष्ण का जय जयकार हो, जो विष्णु वंश में है, जो कृष्ण है। जयति जयति मेघ का समा, उनका वर्ण क्या है? श्यामल वर्ण, जैसे क्लाउड का वर्ण है। एंड कमल मीन्स वेरी सॉफ्ट, उसका अंग जो है बहुत सॉफ्ट है, कमल है। जय जयकार हो उनका। जयति जयति पृथ्वी भार नाश, पृथ्वी भार नाश, पृथ्वी का जो भार है, पृथ्वी का जो भार है उसका नाश करने वाला कौन है? मुकुंद है। भगवान का और एक नाम है मुकुंद, उसका जय जयकार। तो इसीलिए जो भगवान पृथ्वी का जो ये जो भार का नाश करने के लिए, ये है अब हमारा पहला कारण है। उसके बाद हम दूसरा कारण की तरफ जा रहे हैं कि भगवान असुर को उद्धार करने के लिए भी आता है। भगवान जब आता है असुर को उद्धार करने के लिए, इसलिए असुर को क्यों मारता है? सेकंड रीजन इज टू डिलीवर द डेमॉन्स। क्योंकि असुर को जब भगवान जब फाइट करता है, मारता है, तो बेसिकली असुर कैसे उद्धार होता है? उनको साइड पे मुक्ति मिलता है। ऑल्दो असुर को, समीप को, शालिक को, शाहरुख को, सृष्टि, ये सब लिबरेशन नहीं मिलता है, लेकिन साइड पे मुक्ति मिलता है। तो ये भौतिक जगत को पार कर जाता है। जब भगवान आता है, असुर को वध करता है, बेसिकली ये भगवान का विशेष कृपा है असुर का प्रति। हम बाहरी दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि ये भगवान असुर को मार रहे हैं, भक्त को रक्षा कर रहे हैं, तो ये कोई ये हो रहा है, मतलब पक्षपाती से हो रहा है। बट ये पक्षपाती नहीं है।
तो इस परिप्रेक्षित में युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को पूछा है श्रीमद् भागवतम में, हाँ, ये ऐसा क्या कारण है ये भगवान कृष्ण देवता का हमेशा साइड में लेता है और असुर को नष्ट करता है। तो इसका रिस्पॉन्स में जो है एक्चुअली तो समम सर्वभूतेषु, तो भगवान सबका लिए सेम है, लेकिन फिर भी इंटरनली जो है भगवान मतलब भक्त के ऊपर विशेष कृपा करता है। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज ऐसा प्रश्न पूछता है, जो देवता साइड में क्यों पक्ष लेता है और असुर का साइड में पक्ष नहीं लेता है, जाके उनको मारता है, तो इसका रेस्पॉन्स में सुखदेव गोस्वामी ने पूरा एक लीला वर्णन किया है श्रीमद् भागवतम का, और वही जो लीला है वो प्रहलाद नरसिम्हदेव लीला है। तो वो लीला से माध्यम से भगवान ये स्थापित कर रहे हैं कि भगवान ऐसा कुछ पक्षपाती नहीं करता है, क्योंकि वो असुर को अच्छा के लिए करता है। जिस प्रकार राजा जो है किसी को अगर पनिशमेंट देता है, तो वो जो कैदी को पनिशमेंट देता है वो किस चीज के लिए, वो अच्छा के लिए है, बिकॉज कैदी को सुधारने के लिए। इस प्रकार एक पिता जो है अपने बच्चा का कभी कभार उनको डांटता है, उनको उनको ये मतलब डांटता है, किस लिए ना, वो बच्चा का अच्छा के लिए ही करता है, जस्ट करेक्ट द चाइल्ड, दैट इज फॉर द बेनिफिट फॉर द चाइल्ड ओनली। तो इस प्रकार जो है भगवान फॉर एग्जाम्पल राजा जो है, राजा कई बार क्या करता है, अपना मंत्री को बोल देता है, तो मंत्री राजा का शक्ति के आधार पर मंत्री क्या करता है, किसी कैदी को धन दे देता है। तो इस प्रकार जो है कृष्ण का जो शक्ति का आश्रय लेके जो भगवान जो विष्णु है, जो विष्णु है वो कृष्ण का शक्ति का आश्रय लेके असुर को मारता है। यानी कृष्ण डायरेक्ट नहीं मारता है, लेकिन कृष्ण का शक्ति का आश्रय लेके विष्णु असुर को मारता है। ये है आपका सेकंड जो रीजन है। और इसका जो थर्ड रीजन है, ये असुर का जो इच्छा होता है उसको पूर्ति करने के लिए भगवान असुर के साथ फाइट करता है, जस्ट टू सैटिस्फाई द डिजायर ऑफ द असुराज, satisfy the desire of the asuras। किस प्रकार है, जैसे भगवान क्या करता है, कोई अगर व्यक्ति भगवान से प्रेम करना चाहता है तो भगवान उसका रेस्पॉन्स में प्रेम करता है, इट्स अ लविंग एक्सचेंज, रेसिप्रोकेशन। जो व्यक्ति भगवान के साथ न्यूट्रल, ना प्रेम करेगा ना देश भाव नहीं रखेगा, इस प्रकार है तो वो न्यूट्रल, भगवान भी उसके प्रति न्यूट्रल है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भगवान के साथ देश भाव में देखता है, एनवियस है और भगवान को साथ फाइट करना चाहता है, भगवान को मानता नहीं है, तो भगवान भी उस प्रकार उनके प्रति रेसिप्रोकेट करता है, भगवान भी उनको ऊपर ऐसा देखता है, ऐसा ये जो था हम प्रपद्यन्ते ताम सत्यव भजते। लेकिन ये बाहरी कण से, लेकिन भगवान तो सबके लिए दया दिखाता है, जाके वो उनसे कोई देश करे व ना करे, उनसे भी दया दिखाता है, लेकिन बाहरी कण से भगवान ऐसा जय जथम, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है नॉन डिवोटी है वो भगवान के नॉर्मली इनिमिकल देश भाव रखता है, बोलता है ओके आई डोंट बिलीव गॉड, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, भगवान के प्रति ईर्ष्या होता है, भगवान के साथ लड़ाई करेगा, जैसे हिरण्यकशिपु वगैरह वगैरह। ओके, लॉर्ड बोलता है ओके कम ऑन, आई वांट टू फाइट, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार भगवान उनके साथ लड़ाई करते। अभी ऐसा भी सिचुएशन है, कभी जो भक्त होता है वो भी भगवान का अदर साइड में जाता है, जैसे भीष्म पितामह भगवान का एगेंस्ट में जाता है, मतलब अदर साइड में लड़ाई के लिए। तो एक बेसिकली लीलाएं हैं, वो भगवान का ज्ञान का अनुसार है, उससे भीष्म पितामह ऑपोजिट साइड में क्यों गया, भगवान का प्लान था, और भगवान तो भीष्म पितामह का एक तो ग्लोरिफिकेशन भी करना चाह रहा था। ये बहुपाद ने तात्पर्य में भागवत में लिखा है कि अगर भगवान का जो भीष्म पितामह जैसे महाजन
वो भी व्यक्ति अगर भगवान का उल्टा साइड में जाएगा, भगवान का अगेंस्ट में जाएगा, तो वो भी क्या है, उनका भी जय नहीं रहेगा, वो भी पराजय हो जाएगा। ये बेसिकली साधारण लोगों को दिखाने के लिए किया। अदरवाइज भीष्म पितामह इज ऑलवेज द ग्रेटेस्ट डिवोटी, वाज द महाजन। जब उन्होंने एरो का बाण निक्षेप किया है भगवान के प्रति, भगवान के ऊपर जब एरो आ रहे हैं, तो एक्चुअली ये बोलता है बहुपाद कि जो लोटस रोज, सॉरी लोटस नहीं, रोज फ्लावर होता है, रेड रोज, हाँ, जैसे एक एक एरो निक्षेप मतलब छोड़ रहा है ना, कौन? भीष्म पितामह भगवान, तो भगवान के ऊपर जो एरो लगा है, ऐसा लग रहा है जो भीष्म पितामह इज ऑफरिंग द रोज फ्लावर टू कृष्णा, इट्स नॉट द एरो एक्चुअली। इस प्रकार भगवान कृष्णा भीष्म पितामह का लविंग एक्सचेंज हो रहा है उसमें, इट्स नॉट दैट इनमिकल, जस्ट देयर इज सम प्लान टू टीच समथिंग टू द पीपल। बेसिकली भगवान का जो असुर है, उनको कभी कभार उनको इच्छा होता है, तो उनको पूर्ति के लिए भगवान कि सबका इच्छा पूर्ति करता है। वो देश भाव रखते थे, चलो आप देश भाव रखो, चलो राइट, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज द तीसरा कारण। मेन कारण हम बाद में लास्ट में आता है। उसके बाद हमारा और एक जो कारण है वो है ये है भगवान का खुद का जो इच्छा है उसको भी पूर्ति करना चाहिए ना, तो वो भी उसके लिए भी एक कारण है। लॉर्ड वांट्स टू फुलफिल हिज डिजायर टू रिलीज द बीड रस, तो देयर आर 12 रस। उसमें से जो मुख्य जो 5 रस है वो है शांता, दास, सख, वात्सल्य, माधुर्य। यह 5 मुख्य रस है। इसके अलावा और 7 रस है जो गौण रस है, तो उसमें से वन ऑफ द रस इज द बीड रस। भगवान कभी कभार इच्छा प्रकाश करता है, मेरे को भी फाइट करना चाहिए, बोर हो गया। हाँ, ये भगवत धाम में प्रेम का आदान प्रदान करते बोर हो गया, थोड़ा सा मतलब हाथ पैर को इस्तेमाल करना चाहिए। भगवत धाम में तो फाइट नहीं हो सकता, इज अ ट्रांसेंडेंटल, वहां पे असुर भी नहीं है, भगवत धाम में असुर का कुछ स्थान नहीं। तो भगवान रिलीज वांट्स टू रिलीज द बीड रस, तो उनका भी ये इसमें उनका आनंद आता है, तो ये भगवान का अंदर। बट हमारे मन से इसीलिए हम भी लड़ाई करता है, भौतिक जगत में व्यक्ति लड़ाई करता है, लेकिन वो उसका विकार है। भगवान जब लड़ाई करते हैं उसका अंदर उनका देश भाव, जब प्रकृति का 3 गुण आच्छादित हुआ, ये सब कुछ नहीं है, देश से ऊपर ही है, देश भाव नहीं रखता है अंदर से। हाँ, वो अपना आनंद के साथ करता है, लेकिन जिसके साथ वो लड़ाई करता है उनके साथ देश का भाव लेके नहीं करता है। लेकिन भौतिक जगत में उसका विकार है, उल्टा है, जो देश भाव लेकर करता है, ठीक है ना। विकार प्रकट होता है भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत का विकार प्रकट। भगवान जो राधा रानी के साथ भी कभी कभार जो तर्क वितर्क करता है, एक दूसरे से गुस्सा होता है, बड़ा ट्रांसेंडेंटल है कि ये क्यों करता है। ये जो वीर रस, ये जो बाकी जो सेकेंडरी रस, जो गौण रस है, वो करने से क्या करता है, जब प्राइमरी रस को मतलब और रिलीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ऊपर रस है, जो प्राइमरी या सेकेंडरी रस है, जो जैसे वीर रस है, उसको आच्छादन वीर रस करने से जो मेन रस है, वो मेन रस का मीठापन को और बढ़ा सकता है, मतलब बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार है, जैसे हम यशोदा दामोदर लीला में देखता है, यशोदा मैया गोपी है सिंपल, भगवान कृष्णा जिनसे पीआर पर्सनिफाइड जो भाई है, वो भी भयभीत हो जाता है भगवान से, भगवान का दिव्य नाम से भी भयभीत हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जो पीआर पर्सनिफाइड उनका सामने हाथ खड़ा कर देता है, वही भगवान सिंपली यशोदा माई का सामने भयभीत हो जाता है। ये जो है, ये जो भगवान का भयभीत होना एक गोपिया का सामने, एक डिवोटी का सामने, एक
गौण रस है। इससे क्या होता है, ये गौण रस क्यों किया है, तो उसका करने से क्या होता है, ये जो लीला का जो मीठापन ये बढ़ा देता है। इसका इसका वजह से उसका जो वात्सल्य रस, जो कृष्ण यशोदा में जो वात्सल्य रस है, वो वात्सल्य रस का जो मीठापन उसको बढ़ा देता है। क्या करने से, जब ये भय वाला जो रस दिखाता है, तो ये बेसिकली जो है, तो भगवान ये रस आस्वादन करता है, जब असुरों के साथ fight करता है, असुरों को जब मारता है, ठीक है ना। ये उसका इच्छा जो है वो उनका इच्छा से ही होता है। तो क्योंकि आप ये देखिए, जब भौतिक आध्यात्मिक जगत में कोई एनवियस भी नहीं होता है और वहां पे कोई एक दूसरे से लड़ाई भी नहीं कर सकता है, लेकिन उनके लिए भगवान को भौतिक जगत में आना पड़ेगा और फिर लड़ाई करना पड़ेगा। भौम वृंदावन, भौतिक जगत में जहाँ वृंदावन जाता है उसको बोलता है भौम वृंदावन, यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ये असुरवाद वगैरह ये सब जो है ना, भगवान कृष्णा वृंदावन से मथुरा गया, द्वारका गया, फिर वापस आ गया द्वारका से, ये सब जो लीला जो है वो हम आगे जाके देखेगा, नैमित्तिक लीला और नित्य लीला वगैरह जब हम डिस्कस करेंगे, ये सब वहां पे गोलोक धाम में नहीं करते। तो भगवान ये सब जो वीर रस आस्वादन करने के लिए आता है। कभी कभार क्या होता है, जो उनके लिए योग्य व्यक्ति मिलता नहीं है। जब भगवान के साथ कौन लड़ाई करता है, छोटा मोटा असुर नहीं चलेगा ना, उनका एक मोस्ट पावरफुल असुर चाहिए, तो होता नहीं है। इसलिए कभी कभार भगवान विष्णु लोक में बोलता है, किसी भक्त को चूज करता है, चलो आप मेरे साथ पृथ्वी लोक में चलो और आप डेमन मन के चलो, हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। तो इस प्रकार जो हमारा एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवतम में, जय एंड विजय, जय विजय इन द डार्क हॉल इन विष्णु लोक, जय विजय इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड। बट जो भी मतलब भगवान का जो वीर रस को वीर रस में शामिल होने के लिए, भगवान का इच्छा से, भगवान को प्रसन्नता के लिए कोई जय विजय क्या रूप में आए, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु एज ए डेमन आए हैं और भगवान के साथ लड़ाई की है। इस प्रकार जो भगवान अपना वीर रस को आस्वादन करता है इस धरती पे के बाद, तो इसीलिए भगवान आता है। दिस इज वन ऑफ द रसा टू फुलफिल द डिजायर। उसके बाद जो भगवान आता है, जो मेन रीजन है भगवान आने का, जो रीजन मैंने हमने पहले बताया, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या है, परित्राण है, साधु को परित्राण कर लीजिए, भगवान को आने का जरूरत है क्या? साधु चाहेगा भगवान तुम नीचे आ जाओ सो दैट हमारा परित्राण हो जाएगा, यू कैन प्रोटेक्ट मी। भगवान जब इच्छा प्रकाश करता है साधु को प्रोटेक्ट कर लेता है, तो उनके लिए आने का जरूरत नहीं है। जस्ट बाय चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र वन विल बी प्रोटेक्टेड। भगवान को खुद को आने का जरूरत है, ऐसा बोलता। मैं आज सोच रहा था, जो देखिए भगवान इतना मार्सीफुल है, भगवान द्वापर युग का एंड में तो अप्रकट हो गया, लेकिन उन्होंने अप्रकट होने का पश्चात हमारे लिए क्या छोड़ के गया, परिणाम छोड़ के गया, श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता छोड़ के गया, जाकि ये तीनों चीज का आधार पर ये भौतिक जगत में कलियुग में पतित लोग है, वो तीन चीज का आधार लेके मतलब भगवान का धाम में प्राप्त कर सकते हैं। इनफैक्ट ये तीन चीज का जब हम आश्रय लेता है, जब इसका शरण लेता है, तो जब हम हरिनाम का शरण लेता है, गीता भागवतम का शरण लेता है, इसका मार्फत हम भगवान का साथ एसोसिएट हो रहे हैं। जिस प्रकार अर्जुन का सामने भगवान खड़े थे और अर्जुन गीता सुन रहे थे, तो इस प्रकार अगर हम भगवत गीता का श्लोक उच्चारण करेगा, हरिनाम लेगा, गीत भागवतम पढ़ेंगे, तब ऐसा महसूस होना है जे भगवान कृष्ण स्वयं हमारा सामने ही मौजूद। ऑल दिस थ्रीज आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। भगवान हमारे लिए छोड़ के गया है, इसलिए भगवान कृपालु है। एंड सेकंड इज परित्राण विनाशाय च दुष्कृतम्, दुष्कृत को विनाश करने के लिए भगवान का आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मटेरियल एनर्जी और भगवान इच्छा से वो हो जाता है, और कहीं उनका अवतार आ जाता है तो वो भी हो जाता है। और विनाश दुष्कृत
धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान को आने का क्या जरूरत है? उसके लिए तो साधु है, शुद्ध भक्त है, शिला प्रभुपाद जैसे प्रतिनिधि है, उन लोग स्थापन करेंगे। The main reason to come Krishna in this material world, अनुग्रह भक्ताना, भक्त को अनुग्रह करने के, to give the pleasure to his devotee. And इधर आने के बाद असुर को क्यों मारता है? That is also to give the pleasure to his. तो ऐसा बोलता है कि कोई दुष्ट लोग, कोई जो पापी लोग को जब भगवान का हाथ में मारता है, भगवान जब उनको मारता है किसी डेमन को, भक्त लोग जो है बहुत प्रसन्न हो जाता है क्योंकि उनको कम से कम मुक्ति मिल रहा है। वो इतना पाप करने में लिप्त है, यहाँ पे नरकगामी हो रहा था, तो उसका भगवान उनको हाथों से मार दिया, तो भगवान का हाथों से मार गया तो कम से कम उनको सायुज्य मुक्ति मिल गया, नरकगामी नहीं हुआ। जाके दूसरा साइड से बोलता है साहित्य मुक्ति इवन लोअर देन द नरक। तो इसलिए हमारा जो हमारा इसका इसमें विकार क्या देखता है, जब हम सिनेमा में देखते हैं एक विलेन जब है, जब हीरो को मारता है ना, तो क्या है जो दर्शक होता है वो सॉरी जब हीरो जब विलेन को मारता है तो दर्शक क्या करता है, तो खुश हो जाता है। ये इसका विकार है। इस प्रकार जो है असुर को वध करके भक्त को आनंद प्रदान करता है भगवान। तो इसलिए तो मेन रीजन कृष्ण टू कम डाउन, जो भगवतम क्या बोलता है, अनुग्रह भक्तानां मानुषीं देहम आश्रितः। तो भक्त मतलब डिवोटी को कृपा करने के लिए जो मनुष्य का शरीर भगवान लेता है, भजते तादृशक्तिदा, वही समस्त जो है फर्स्ट टाइम जो भगवान का लीला इस भौतिक जगत में आगे लीला, जैसे असुर को वध करने का जो लीला है, ये सब लीला करता है। और जस श्रुता मीन्स जो सुन के, तत्परो भवेत मीन्स जो इसके बारे में श्रवण करता है वो क्या करता है, वो उनका ऊपर डेलिकेट हो जाता है, मतलब भगवान को भक्ति में लग जाता है और भगवान का स्मरण करता है और भगवान का धाम एट द एंड। ये कृपा करने के लिए जब भगवान चाहता है भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए, भक्त भी चाहता है भगवान को आनंद करने के लिए, दोनों एक दूसरे से कंपटीशन चलता है। तो जब भगवान आता है इस जगत में और असुर को वध करता है, तो उसमें जो भक्त लोग हैं उनको आनंद मिलता है और वही लीला को बार बार स्मरण करता है। ठीक है, तो ये रीजन है। और उसके बाद जो है भगवान आता है, नेक्स्ट रीजन मैं बताता हूँ, ये सॉरी असुर को उद्धार करने के लिए, असुर का इच्छा प्रकाश करने के लिए और भगवान अपना पूर्ति करने के लिए और यस भक्त को रक्षा करने के लिए। तो भगवान जब आता है क्या है, भक्त को रक्षा करने के लिए भी कभी आता है, तो वो कई बार भगवान अपना भक्त के साथ इतना रिलेशन है, जब प्रेम का आदान प्रदान है, जो बहुत टॉप लेवल का भक्त है, बहुत एडवांस संत आत्मा है, तो उनको अपना हाथ से कई बार इतना प्रेम है, कई बार आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल भगवान प्रहलाद महाराज को रक्षा किया है हिरण्यकशिपु का रूप है। तो भगवान जैसे वृंदावन में जो ब्रजवासी है उनको कितना रक्षा किया है, पंच पांडव, प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज, इतना सब जो फर्स्ट क्लास जो एडवांस जो नित्य मुक्त जो डिवोटी है उनको क्या है मतलब खुद आके रक्षा करना चाह रहे हैं। एक बार जो है अकबर बीरबल से प्रश्न करता है जे हमारा जो भगवान है इस भौतिक जगत में आता क्यों है डिवोटी को रक्षा करने के लिए, वो तो अपना किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है, क्या जरूरी क्या है। तो बीरबल उस टाइम रिस्पॉन्स नहीं दिया, बीरबल बोलता है जो वेट बाद में बताए। तो एक दिन ऐसा हुआ है कि अकबर का जो ग्रैंड सन है वो आउटसाइड में पार्क में खेल रहा था और पार्क में एक लेक था, तो लेक का पानी में गिर गया। तो उस टाइम अकबर वहां पे आजू बाजू में थे, जैसे देखा जाए मेरा
ग्रैंडसन पानी में डूब गया है, तो इमीडिएटली बिना सोच समझ के अकबर खुद पानी में जंप किया और वो अपना ग्रैंडसन को उठाया, वहां से बचाया। तो जब बाहर आया तब बीरबल वहां पे हाजिर हो गया। बीरबल बोलता है, जी अकबर जी, आपको क्या कारण था? आप तो एक पूरा पृथ्वी का सम्राट है, राजा है, तो आपको क्या कारण था आपको खुद पानी में जाके मतलब जंप करने के लिए? आप तो किसी आपका इतना सारे नौकर चाकर इतना सारे है, किसी को भी आप पानी में बोल देता जो वो लेके आ जाता बच्चे को नीचे से। आपको क्या कारण था? नहीं नहीं, ये मेरा ग्रैंडसन है ना, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा ग्रैंडसन है, मेरा बहुत मैं इसका ख्याल रखता हूँ, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, तो इसीलिए मैंने खुद ही किया। तो तो उस टाइम क्या हुआ? तो उस टाइम बीरबल उनको बोला, देखो भगवान कभी कभार आता है अपना भक्त को रक्षा करने के लिए, जो उनका जो बहुत ही डियर मोस्ट डिवोटी है उनके लिए, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा का इतना प्रेम का कभी संबंध रखता है, जाके कभी कभार उनको भी खुद मन करता है आके उनको रक्षा करना। और उनको रक्षा कैसे करता है? नौसुर को मारता है, जिस प्रकार जो प्रहलाद महाराज का केस में हिरण्यकशिपु को मारा था नरसिंहदेव भगवान, तो नरसिंहदेव भगवान का रूप में आए थे भगवान। और जैसे पंच पांडव का खुद आके उनको रक्षा किया है, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज सबको रक्षा किया। तो ये अनदर रीजन है भगवान ने आके और उसको मानने। तो उसके बाद ये आई थिंक 6 रीजन बता दिया। लास्ट 2 रीजन है, लास्ट और 2 रीजन है। तो 7th रीजन जो है, भगवान असुर को निजे लीला में शामिल करने के लिए आता है। जैसे असुर कभी कभार क्या करता है, भगवान को कष्ट दे देता है, कई बार बहुत कष्ट देता है। तो जब असुर जो है भक्त को जब कष्ट देता है, भक्त को कष्ट देता है, तो भक्त क्या करता है, असुर कष्ट देता है तो भक्त हमें चिंतित रहता है। जितना कष्ट देता है उतना ही भक्त क्या होता है, भगवान का शरण कमल में ज्यादा शरणापन हो जाता है, ज्यादा शरण ले लेता है। तो डिवोटी का जो सरेंडर, डिग्री ऑफ सरेंडर टुवर्ड्स द लॉर्ड, the devotee, it will increase when the different demons comes and give the miseries to the devotee, like in Vrindavan pastime। इतना सारा असुर आता है, ब्रजवासी को तकलीफ देता है, ब्रजवासी लोग हमेशा चिंतित रहता है, इसके बाद ये असुर आएगा, इसका नेक्स्ट कब आएगा। ऐसा तो बताया जाता है जब भगवान कृष्ण लॉन्च से पहले डेली 2-2, 3-3 असुर ऐसा वध करते थे। ऑल्दो अराउंड 20-25 असुर का वध का बारे में कृष्ण बुक में दिया है, लेकिन उन्होंने तो डेली 2 असुर को तो मारता है लॉन्च से पहले। तो इस प्रकार भक्त भी चिंता करता है, ब्रजवासी चिंता करता है, आज कौन असुर आएगा, कृष्ण को तकलीफ देंगे, कृष्ण का क्या होगा पता नहीं, कृष्ण उसको कैसे मारेगा। तो हमेशा ही भक्त जो है भगवान का जो भगवान का बारे में जो चिंता है ये इसको बढ़ता। तो भगवान देखता है कि इस प्रकार हम आके अगर असुर के साथ ऐसा लीला करें और असुर को अपना लीला में शामिल करें, तो भगवान भक्त का जो चिंतन मेरे प्रति, भगवान का प्रति जो भक्त का जो चिंतन है, शरणापन है, वो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। ये भक्त के लिए अच्छा है, इसलिए असुर को अपना लीला में शामिल कर लेता है और असुर को मारता है। असुर को मारता है नहीं, असुर को अपना लीला में शामिल करता है ना। तो उसमें क्या होता है, भक्त का जो प्रेम है भगवान का प्रति वो और भी बढ़ते रहता है, और भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है माता पिता जब बच्चा का तकलीफ होता है तो चिंतित होता है। इस प्रकार बच्चा भी माता पिता का तकलीफ होने से चिंतित करता है, लेकिन जब बच्चा तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है तो माता पिता आनंद आता है। तो बेसिकली माता पिता हमेशा बच्चा का बारे में सोचता है जब तकलीफ में है। इस प्रकार
भक्त भगवान का जो संबंध है वो भी चिंतित में है। मतलब कि भगवान के बारे में हमेशा ही चिंतन करता है, उनका भक्ति भाव बढ़ जाता है, उसका शरणापन बढ़ जाता है। ये है सेवेंथ रीजन। तो एट्थ रीजन जो है, जो लास्ट रीजन आज बताने वाला है, वो थोड़ा सा गूढ़ा है और वो बड़ा है। तो भगवान के असुर वध का जो लीला जो है, ये श्रवण करने से हमारा जो हृदय, जो भक्तों का जो हृदय है, जो ऐसा भी साधारण लोगों का जो हृदय का जो मैल है, कलमश है, वो हो जाता है। तो इस परिस्थिति में तो मैं एक श्लोक आपको बताता है, जो श्रीमद् भागवतम का जब तीनावर्त को वध हो रहा था, आई मीन उससे पहले सरकासुर का वध हो रहा था, तो जब सुखदेव गोस्वामी वो वर्णन करने से पहले परीक्षित महाराज को वर्णन करने से पहले परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, दैट इज 10.7.1 and 10.7.1 and 2। अगर आप इसमें मैं शेयरिंग तो नहीं कर सकता हूँ, अगर शेयरिंग हो जाएगा तो बाकी लोग देख सकते हैं श्लोक। Whether I can share, I don't know whether it can। मुझे आपको देख रहा है मेरा स्क्रीन? दिख रहा है ब्रो, दिख रहा है। अच्छा अच्छा, जस्ट ए मिनट, मैं निकालता हूँ। यस, देख रहा है ना अभी? श्री राजा उवाच येन जेनावतारेण भगवान् हरीश्वर करोति कर्णारम्भानि मनोज्ञानि च न प्रभः यत्सिंहन्त अपैति यत्सिंहन्तायपयति अरतिर्वितृष्णा सत्यं च शुद्धति अचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्नसेत्। So here the Parikshit Maharaj says that jena jena avatarena, jena jena avatarena karoti karna ramani। तो भगवान हरीश्वर जेना जन अवतारेना, जो अवतार लीला विलास किया है, भगवान का जो डिफरेंट अवतार आता है, लीला विलास करता है, भगवान खुद आता है, लीला करता है। ईश्वर इज द सुप्रीम कंट्रोलर जो है, तो करता है, करोति इज डूइंग दिस पास्ट टाइम्स। वो पास्ट टाइम्स हमारा लिए क्या है? कर्ण रमणी। ये जो है हमारा जो कर्ण जो है, हमारा जो कान को आनंद देता है, हमारा कर्ण को आनंद देता है, आनंद प्रदान करता है। मनोज्ञानी, मनोज्ञानी वेरी अट्रैक्टिव टू द माइंड, और मन के लिए भी बहुत आनंद प्रदान करता है, आकर्षित करता है। हमारा मन को वो भगवान का लीला में आकर्षित करता है, मन को भगवान का लीला में आकर्षित करता है। न प्रभो ओ माय लॉर्ड, एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस। एंड देन दत्त सिंह भक्त, वो जो भगवान का जो लीला है, वो सुन के दत्त सिंह भक्त, वो सुन के क्या होता है? अपैति औरति वितृष्णा। रति, रति मीन्स आकर्षण, अरति मीन्स विदाउट अटैचमेंट, मीन्स कोई आकर्षित नहीं होता, उसका आसक्ति। हमारा भगवान के प्रति जो अनासक्त है, आसक्ति नहीं है भगवान के प्रति, हमारा हृदय में जो आसक्ति भावना भगवान के प्रति नहीं है, और भगवान के प्रति तृष्णा नहीं है। तृष्णा मीन्स क्या होता है? जब हमको प्यास लगता है उसी को तृष्णा बोलता है। हम क्या पानी पी लेता है तो तृष्णा खत्म हो जाता है। भगवान का प्रति तृष्णा नहीं है। भगवान का लीला का सुनने के बारे में, कुछ भगवान का बारे में सुनने के लिए हमारा जो प्यास है नहीं, और उसका उल्टा है तृष्णा। प्यास होगा तो तृष्णा
और भगवान का लीला कथा नहीं मतलब सुनने का अगर इच्छा नहीं आए, आकर्षण नहीं है, तो वितृष्णा। तो हमारा हृदय में जो भगवान का गुणगान के बारे में जो वितृष्णा है और जो औरती है, जो आकर्षित नहीं होने का है, वो सब जो है अपरित्य खत्म हो। ये जो भगवान का लीला कथा, खास करके हमारे लिए असुरवध का लीला सुनने से हमारा हृदय में भगवान का प्रति जो विरक्ति का भाव है, जो हाँ, और भगवान का प्रति जो वितृष्णा का भाव है, वो सब क्या होता है, खत्म। सत्यम च शुद्धते अचिरेण पुंसा, बहुत शीघ्र है, अचिरेण बहुत शीघ्र हमारा हृदय में हाँ क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है, भक्तिर हरो, हमारा हमारा अंदर क्या है, जो भगवान का प्रति जो भक्ति है, हरो भगवान हरि का प्रति जो भक्ति है, वो क्या जागृत हो जाता है। पुरुषे उस भगवान का चरण कमल में हमारा भक्ति भाव जागृत होता है। सक्षम तदेवा हारम बदा मन से, यही मेरा मत है। तो इसलिए परीक्षित महाराज बोलता है कि हे सुखदेव गोस्वामी, हाँ मेरे को भगवान का जो असुरवाद का जो लीला कथा है और सुनाते रहो। ये कब बोला है, 10 शतकासुरवाद के शतकासुर का पहले, मतलब पूतनावाद हो गया है, पूतनावाद के बाद शतकासुरवाद करने से पहले जब पूतनावाद का लीला परीक्षित महाराज सुन लिया, तो उनका अंदर इतना लालसा जागृत हो गया बाकी असुरा का बात सुनने के लिए, उन्होंने ऐसा बोला। तो और भी क्या बोलता है, 10.1.4 में भगवान बोलता है भव औषाद, क्योंकि ये असुरवाद का लीला, भगवान का जो लीला कथा आप जब सुनता है, ये क्या है, ये मतलब जो परफेक्ट मेडिसिन फ्रॉम द डिलीवरेंस ऑफ दिस मेटेरियल एग्जिस्टेंस। यही भौतिक जगत से उद्धार होने के लिए परफेक्ट मेडिसिन, औषधि क्या है, भव औषधि क्या है, वो है भगवान का जो लीला कथा है, भगवान का दिव्य नाम, भगवान का गुण, भगवान का कर्म जन्म, ये सब कथा जो है हमको भगवान का प्रतिनिधि का मुख से सुनने का है, जो who are coming from the disciplic succession, जो परंपरा में जो आ रहे हैं, ऐसा भक्त से सुनना चाहिए। 10.1.4। तो इसलिए ये जो कारण है, भगवान का जो असुरवाद का जो लीला है, ये श्रवण कीर्तन करने से जो हमारा जो जो जो, जो हम लोगों का जो हृदय में जो भाव है, भक्ति भाव है, वो जागृत होता है। क्यों, कर्मस जो है हमारे अंदर जो है वो खत्म हो, just to purify our heart by hearing the Krishna speaking the divyam. And two kind of the pastimes, दो टाइप का लीला भगवान का होता है। क्या क्या, एक होता है नित्य लीला, एक होता है नैमित्तिक लीला। नित्य लीला बेसिकली होता हमेशा का लिए होता है, इटर्नली इट इज गोइंग ऑन इन द गोलोक धाम, लाइक रास लीला, लाइक जो गोचरण लीला, कावड़ बॉयज, कावड़ जो बॉयज काउ चराने के लिए लीला, ये सब जो है नित्य लीला है, वो गोलोक धाम में होता है। जाके भौम वृंदावन में इस भक्ति में भी किया था भगवान, गोलोक धाम में हमेशा के लिए नित्य होता है, इटर्नली। लेकिन जो नैमित्तिक लीला है, वो जो भगवान का लीला है, वो गोलोक धाम में कभी नहीं होता है, वो ओनली भौतिक जगत में वो भगवान परफॉर्म करता है। जब भगवान भौतिक जगत में आता है, वो नैमित्तिक का लीला करता है। वो कैसे, वो क्या है, वो किस टाइप का लीला है, असुर का वध करना। असुर का वध गोलोक वृंदावन धाम में नहीं होता है, इस भौतिक जगत में आके ही करता है। और भगवान वृंदावन से बाहर हो जाना, मथुरा जाना, फिर वापस आना, ये जो है, ये सब जो है नैमित्तिक लीला है, वो आध्यात्मिक ऊपर में नहीं होता। इन दिस मेटीरियल वर्ल्ड क्या करता है, नित्य लीला नैमित्तिक लीला दोनों ही चलता है, क्योंकि यहाँ पे भी गोचरण लीला हुआ, रास लीला भी हुआ, और असुर का वध लीला भी हुआ। हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो भौतिक जीवों के लिए हमको मेन जो फोकस करना है, किलिंग द डेमॉन्स, जो असुर को वध करने का लीला का हमको फोकस करना है, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट मैटर है। नित्य लीला का जो इसका सब्जेक्ट मैटर है, वो नित्य मुक्त जीव के लिए है, वो जो भगवान का जो एडवांस डिवोटी है, जैसे 6 गोस्वामी है, उनके लिए है।
नैमित्तिक लीला क्या है? वो प्रैक्टिसिंग डिवोटी, जो हमारा जैसे साधक है, जो साधना भक्ति हम करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके लिए ये इम्पोर्टेंट है नैमित्तिक लीला। तो एक भक्त होता है जो साध्य भक्त करता है, साध्य भक्ति करता है, सिद्ध भक्त जो है एक साधना भक्ति, ठीक है ना। तो हम जब इसको मेडिटेट करता है, हम इसको जब स्मरण करता है, पढ़ता है, तो ये जैसे शिला प्रभुपाद बोलता है, डेली सोने से पहले कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए। एक एक कृष्ण बुक में कौन सा लीला, एंड किलिंग द डेमॉन्स, ये लीला सुनना चाहिए। किलिंग डेमॉन्स लीला हमारे लिए रिक्वायर्ड, और वो ही हमको प्यूरिफाई करता है, हमारा हृदय को शुद्धिकरण करता है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर आप देखेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर उनका जो चैतन्य शिक्षा का शिक्षा, भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षा मृता एक ग्रंथ है, तो उसमें डिफरेंट टाइप का अनर्थ का बारे में बताया। एक एक अनर्थ रिप्रेजेंट करता है एक एक असुर को। ओके, पूतना रिप्रेजेंट स्यूडो गुरु, जो गुरु असली गुरु नहीं होता, झूठा गुरु होता है, उनको बोलता है। टाटाकासुरा बोलता है कि हम जो हमारा जो खराब जो आदत है, जो भी खराब आदत है इस जन्म में पूर्व जन्म में, उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। दिस इज द बर्डन, कैरिंग द बर्डन ऑफ दिस ओल्ड एंड न्यू हैबिट्स, बैड हैबिट्स। डिफरेंट डिफरेंट हमारा अंदर जो अनर्थ है, एक एक अनर्थ जो है एक एक असुर को रिप्रेजेंट करता है। जब हम इस लीला को हम कोई फॉर एग्जाम्पल हम सटकासुरा लीला अगर पढ़ेंगे तो उसमें से इतना शिक्षा है, उनके साथ साथ ये जो अनर्थ है वो हमारे से धीरे 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 चला जाता है। तो इसलिए जो है इंटरनल, जो एक्सटर्नली भगवान कृष्ण को हम जब सुन रहे हैं, जब भगवान सटकासुरा को वध कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली हमारा अंदर वो वाला स्पेसिफिक जो अनर्थ है धीरे 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 चला जाता है। तो ये बेसिकली बोलता है, एंड इसमें हमको यही लाभ मिलता है। तो ये लाभ देने के लिए भगवान आता है ना, उसको फील करता है। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे जो हमारा अंदर बैड हैबिट है वो सबको, मतलब ये सब डिफरेंट डिफरेंट फर्स्ट टाइम्स में आता है। तो इसलिए हम ये लीला को सुनता है। डिफरेंट ऐसे तीनों पता लीला में डिफरेंट फिलोसफीज वगैरह वगैरह, तो वो लीला को हम मतलब खटकासुरा तीनों पता लीला के लिए मैंने सोचा था, वो तो आज तो टाइम नहीं, किसी दूसरा एक क्लास में होगा, तो उसमें बहुत सारे हमको सीखने को मिलेगा। हमारा जीवन में जो डिफरेंट बहुत सारा अनर्थ जो है उसको खत्म करने के लिए वो सब लीलाएं हैं बेसिकली। तो इसका बारे में हम कभी बाद में सुनेंगे। तो ये जो 8 कारण है, मुख्य जो 8 मेन कारण है, बहुत सारा कारण हो सकता है, बट ये जो है प्राइमरी यही कारण जो है, भगवान आता है इस धरती पे और असुर को मारता है। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं क्योंकि टाइम भी ओवर हो गया है, अब हम आगे भी नहीं जा सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। तो किसी को कुछ ऐड करना है और कुछ प्रश्न है, कितनी है, कुछ शेयर कर सकता है, और किसी को कुछ कमेंट है, और अदरवाइज आई ओवर टू गिरिवरधारी प्रभु। Prabhuji, these 8 reasons, can you summarize again, Prabhuji? 8 reasons. 8 reasons प्रभु जी मैं जस्ट बताता हूँ। ये है पहला है जे पृथ्वी माता का जो पाप का जो बोझ है उसको, पृथ्वी माता के ऊपर पाप का बोझ कम करने के लिए पहला रीजन। दूसरा है असुर को उद्धार करने के लिए, उसको मुक्ति देता है। तीसरा है असुर का जो इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए, असुर लोग देशभाव रखता है, देशभाव रख के भगवान के साथ फाइट करता है। और चौथा है भगवान अपना जो इच्छा, अपना जो डिजायर है उसको भी पूर्ति करने के लिए, एंड वो क्या करता है, भगवान वांट्स टू रिलीज द बीर रस, भगवान अपना जो बीर रस है उसको आस्वादन करने के लिए। ये चौथा है, ठीक है। और पंचा है जो है अपना
जो भक्त है उनको रक्षा करने के लिए, अपना जो भक्त है उनको रक्षा करने के लिए असुर को मारता है। और 6 नंबर है, असुर को वध करके भगवान अपना भक्त को आनंद प्रदान करता है। और 7 जो है, भगवान असुर को अपना लीला में शामिल करता है जाके भक्त भगवान के बारे में हमेशा चिंतन करें। और यही रीजन, it was not clear. 7th one was not clear. Can you speak again, please? हाँ, भगवान असुर को अपना लीला में शामिल करता है, शामिल करके वो भक्तों का जो चिंतन है भगवान का प्रति, जो सरेंडर है उसको बढ़ाता है। हाँ, ओके ओके। और 8 नंबर है, भगवान असुर का लीला, असुरवध का लीला का माध्यम से भक्त का जो हृदय के अंदर अगर कलमश है, वो कलमश जो है नष्ट कर देता है जब भक्त वो लीला को श्रवण कीर्तन करता है। हमारा अंदर जो अनर्थ है, भक्त का हृदय में जो कलमश और अनर्थ है उसको खत्म करता है। ओके बाबू जी। हरे कृष्णा। जी। तो किसी को डिवोटी का कुछ क्वेश्चन है, अदरवाइज ओवर टू गिरधारी प्रभु। Hare Krishna Prabhuji, just one one clarification. So in this Kali Yuga, Krishna is coming in the name of sound and through Bhagavatam and Bhagavad Gita to kill the demons inside each individual. That's what the last point means, no? माता जी, एक्चुअली यू आर करेक्ट दैट भगवान का अप्रकट होने का पश्चात भगवान हमारे लिए हरिनाम और गीता भागवतम छोड़ के गया, जाकि हमारा हृदय शुद्धिकरण के लिए। वो हमारा भगवान का प्रति जो देश भाव वो सब चला जाएगा, हृदय शुद्धि होगा। एट द सेम टाइम हमारा अंदर जो अनर्थ है, तब हम भगवान का लीला, जो असुरवध का लीला, ओनली असुरवध का लीला का बात कर रहे हैं, असुरवध का लीला कथा जब हम श्रवण करते हैं तो एक एक अनर्थ का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमारे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जैसे तीनों जो है, एक रिप्रेजेंट करता है जो फॉल्स प्राइडिंग अराइजिंग फ्रॉम द मटेरियल स्कॉलरशिप। जब हमारा अंदर भौतिक एजुकेशन बढ़ता है, स्कॉलरशिप आता है, जब हम स्कॉलर हो गया तो हमारे अंदर फॉल्स प्राइड जो है गर्व बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। तो उसके वजह से कभी कभार हम क्या करता है, बोगस फिलोसफी भी दे देता है, बोगस फिलोसफी देता है। तो वो अगर वो वाला अनर्थ हमारे हृदय में है तो वो अनर्थ बार बार तीनों वर्ष का जब जितना बार आप कथा सुनेंगे, बहुपाद रिकमेंड कर रहे हैं, इफ यू रेगुलरली इफ यू रीड द तीनों पास्ट टाइम्स, देन दिस अनर्थ स्लोली आपके हृदय से चलेगा। Okay. So basically the ego, the pride and the lust, the anger, all these are the demonic qualities of Kali Yuga which each individual have. सबके हृदय में ये सब qualities है, और जब हम कृष्णा का एक एक लीला पढ़ेंगे तो वो अनर्थस कम हो जाता है। हाँ, अभी क्या है, अभी फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे असुराज है, बहुत सारे असुर वध का लीला है, एक एक असुर वध का लीला का एक एक अनर्थ का रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो सारे अनर्थ हमारे अंदर है तो सारे लीला हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग खाली पढ़ना नहीं है, उसको अंडरस्टैंडिंग करना है, क्योंकि आप जब भागवतम से असुरवध का लीला पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे श्लोक का माध्यम से बहुत सारे शिक्षा भी है उसके साथ, ठीक है ना। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Over to Giridhar Prabhu. Okay, Prabhu, thank you very much. Can you stop your screen sharing?